Assalamu alaikum everyone. My name is Hisham Ehsanullah and I will be the host for The Dialogue Dive, and this is our first podcast, and the first guest that we have on board with us is Mr. Amer Azam, who brings in 25 years of professional experience from across many industries from UK, US to Saudi and now in Pakistan. And just a bit of a background as to what Mr. Amer Azam brings in this conversation is that he's began his education from UK, where he did his honours degree in London School of Economics and Political Science, and then Chartered Accountant certification from the Institute of Chartered Accountancy in UK. Then subsequently, Amer Azam moved to the United States, where he practiced his finance knowledge in many different companies, and later then moving to Saudi Arabia, where he had like 10 years of experience in a multi-billion-dollar company by the name of Lijam Sports Company. Is that correct? That's correct. All right, fantastic. So, based on the knowledge that I have right now, our podcast will be focusing on giving a wider perspective to the younger audience of Pakistan. ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں نوجوانوں کو کہ بہت ملکوں میں فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں we consider them as a land of opportunity. مگر I personally believe and my team personally believes کہ Pakistan is also a land of opportunity. اگر اور اس پرسپیکٹو کو ہم کلیئرٹی دینا چاہتے ہیں, ہم گراؤنڈس دینا چاہتے ہیں بائی انٹرویوئنگ ون آف دی موسٹ سکسیزفل انٹرپرینیورز ان پاکستان ہو فیلٹ کہ یہاں پہ بزنس سیٹ اپ کرنے میں زیادہ ویلیو ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, اور اف ناٹ وائی دے فیلٹ اٹ نیسسری ٹو بلڈ اسٹینڈس ان دس کنٹری اٹسیلف. تو امر اعظم, میں آپ سے انٹروڈکشن آپ کا بھی سننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں اس پاکستان میں, سنس یو آر ویری ویل سیٹلڈ ان سعودی عربیہ. وہاں پہ آپ کا کافی اچھا اسٹینس بھی تھا, یو بن سی ای او اور دیر ان دس Lijam Sports Company. تو واٹ میڈ یو کم ٹو پاکستان اینڈ سیٹ اپ ٹرائفٹ اوور ہیئر, جس میں آپ فٹنس انڈسٹری کو آپ ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ Thank you so much, Hisham. First of all, I'd like to congratulate you. Thank you. You and Shanur for setting this podcast up. I'm actually very excited about it. مجھے جب شانور نے اپروچ کیا اور انہوں نے مجھے بولا کہ ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, and of course you're starting it, and I kind of felt the energy کہ there's young guys doing something positive about the country. آج کل فیس بک پہ پوڈ کاسٹ کچھ کبھی کبھی اوپن ہو جاتے ہیں جس میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ ٹو گیٹ اے ویزا ٹو گو ابراڈ. ٹھیک ہے, سو دیٹس another perspective. لیکن for somebody to talk about or take an endeavor, an initiative to talk about something which is also not being spoken enough about, I think we all have a responsibility to support. So hence, for lack of a better phrase, میں نے سوچا پہلا قربانی کا بکرا میں بن جاتا ہوں آپ کے لیے. But I'm excited to be there. I feel honored that you invited me. So I'm excited because I love talking to the youth. I love talking to, I feel that it's a responsibility. So in terms of background, اور کیا وجہ ہے کہ اب یہاں پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں, تو background تو آپ نے کافی حد تک کور کر لیا. I've been very fortunate, I believe. I've been very lucky as well. Of course, parents کی دعائیں, parents کی upbringing, اور بہت لوگوں کی سپورٹ, گائیڈنس, دوستوں کی, بڑوں کی, ٹیچرس کی, جس کی وجہ سے انسان زندگی میں کچھ کر سکتا ہے. But at the same time, I also feel that I've been quite lucky too. But میری لائف میں luck کی spelling is WORK. Work. So that's how the more I worked hard, the luckier I got as well. Now, of course, that doesn't mean that it works in isolation. You got to have all the other things that I talked first about. آپ کو blessing, guidance, support, وہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں زندگی میں آگے جانے کے لیے. But anyway, so as I said, been very fortunate from that perspective. Today I sit on the board of internal audit board of International Cricket Council as well for the last 6 years almost. I also have been recently appointed on
the board of Health and Fitness Association, which is the number one and the oldest trade forum for our $200 billion fitness industry, first Asian, I believe. So I've been quite fortunate, and I'm very excited about the industry. So why Pakistan? There is a long answer, there's a short answer. The short answer is that, many of us who, I returned back to Pakistan after 29 years. Sham. 29 saal maine Pakistan ke bahar guzare. Left after A levels and then had my journey, as you said, UK, New York, and then Saudi. So you can, we say sitting outside of Pakistan, we used to say you can get a Pakistani out of Pakistan, but you can't get Pakistan out of Pakistan. True. So that was always there, right? Sitting there, thinking of opportunities and ways to somehow come back, give back. And that's what you hear also, right? The diaspora sitting outside, millions of Pakistanis sitting outside, having all types of positions. चाहे उनके पास ब्लू कॉलर पोजीशन हो या वाइट कॉलर जॉब हो या बिजनेस हो, वो सोचते रहते हैं कि किस तरह से अपनी कंट्री को पे बैक कर सकें. Now that also, by the way, is a window, right? Because the inclination that the first generation has, the second generation doesn't have. तो ये window है हमारे पास पाकिस्तान की एक कंट्री के पास कि वो उसको कैश कर सके. इंडिया ने बड़े खूबसूरत तरीके से उसको कैश किया और जिसकी वजह से आज ऑफ कोर्स इंडिया इज part of the top. I mean, frankly, second largest or third largest economy in the world, or soon to be. So and there's nothing wrong with it, but they were just smart about it. लेकिन आपके पास opportunity हो, उसको आप कैश ना करें, opportunity ना हो और आप उसको कैश ना कर पाएं, is sad. लेकिन अगर opportunity हो और आप उसको कैश ना कर पाएं, तो that is stupidity, right? So unfortunately we've been more stupid than unfortunate as a nation. तो ये opportunity है, but इसकी भी एक window है. अब जो लोग 60s में गए हैं, अब वो पाकिस्तान के लिए एसेट नहीं रह सके, बिकॉज अब वो रिटायर हो गए हैं और उनके बच्चे अब उनका पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं. लेकिन जो लोग 90s में गए हैं, 2000s में गए हैं, मैं 90s में गया, जो 2000s में गए हैं, 2010s में गए हैं, वो विंडो अभी आपके पास है. तो वो हम विंडो ना ज़ाया करें. तो anyway, so came back to Pakistan. Frankly, I was looking for ways to come back, as I said, like many did. And one of the things happened in my life was that when I was in New York, working a big job at the time, I was heading an international bank in New York. And my father passed away while performing Hajj, right? So that completely changed the perspective of my life, right? Because before that, I thought everything is okay, right? And I would do what I wanted to do. But उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि I should be in Pakistan. I should have spent those years because we are three brothers like yourself, as you were explaining before the podcast, Isham. We're also three brothers, no sisters, and I'm the eldest. So all three of us went to the UK for studying. My younger two brothers came back. I decided to move on and build my career and my life in US. So I kind of felt there was a gap and there was a tremendous amount of guilt that I was carrying. So anyway, I said, okay, enough is enough. Anyway, after that job, I was a partner in a consulting firm, a big consulting firm. Learned a lot, made some great friends, and fantastic experience. But then I felt that I need to move towards Pakistan. Things were quite tough at the time. This is 2011. उस वक्त पाकिस्तान के इतने हालात अच्छे नहीं थे politically और security perspective से. तो although I wanted to really come to Pakistan and take a job or start a business, but my mother and my brothers, my younger brothers, advised me कि नहीं जी, आप बाहर ही रहे तो अच्छा है. तो then we ended up in Saudi. But God had a bigger plan. Right. So started off as a CFO for a conglomerate, or not the fitness company you mentioned. I was CFO for a large conglomerate. I actually became the CFO. I joined them as a finance director, but later on became the CFO. So I spent 3 years with them, but God had a plan. I was always looking to find ways to come to Pakistan. So I got a call one day from one of the top private equity groups who had recently invested in Lee Jam Sports Company. They were looking for a CFO. So I've always been a risk taker, Isham. So I said, I had a big job, but I said, yeah, this sounds interesting. उन्होंने कहा जी हमें स्टॉक मार्केट पे इसकी लिस्टिंग भी करनी है.
सो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग की अपॉर्चुनिटी थी, सो आई सेड चलो ये भी एक अच्छी चीज़ है, एक नया एक्सपीरियंस होगा, कॉर्पोरेट टर्न अराउंड करना था, विच वॉज काइंड ऑफ माई फोर्टे एनीवे. So I jumped the ship, joined a smaller company, from multi-billion to a little bit smaller company. I joined them as a CFO, but I fell in love with the business. And as I fell in love with the business, I started working hard. I mean, I always did, but मज़ा आया. तो फिर जो हमारे सऊदी ओनर्स जो थे कंपनी के और प्राइवेट इक्विटी, इन सब ने फिर फैसला किया कि मुझे उन्होंने इसी कंपनी का CEO बना दिया. So then we had another nice run. We took it public. And again became a multi-billion-dollar chain of fitness clubs, became top 10 fitness chain in the world. तो जब ये जर्नी हुआ तो एक नया एक्सपीरियंस 5.5 साल का उनके साथ मैं था, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस और हुआ. lot of prominence in the fitness industry, lot of relationships, lot of learning. तो फिर ख्याल ये आया कि यार अगर एक सऊदी जैसे मुल्क में, देखें अगर आप दुनिया का नक्शा खोलें, और अभी तो सऊदी अरेबिया में जैसे मैंने बोला पॉडकास्ट से पहले आपसे कि देयर इज़ अ मैसिव गोल्ड रश, राइट, लेकिन कुछ अगर 10-15 साल पहले आप जाएं और दुनिया का नक्शा खोलें एंड यू से आई वांट टू स्टार्ट अ फिटनेस चेन, यू नो गोना पुट योर मार्कर ऑन सऊदी एंड से कि यार सऊदी अरेबिया में दुनिया की टॉप 10 चेन बनाएंगे, राइट, यू थिंक ऑफ सम अदर कंट्री, यू विल से यार बड़ी कंजर्वेटिव है, बड़ा क्लोज सोसाइटी है, हम कैसे वहाँ काम करेंगे. बट सो आई सेड यार अगर हम सऊदी में बैठ के दुनिया की टॉप 10 चेन बना सकते हैं तो व्हाई नॉट पाकिस्तान. तो फिर एक नया ड्रीम डेवलप हुआ. सो देन आई बेसिकली वेंट एंड टोल्ड द ओनर्स ऑफ द कंपनी, आई सेड कि जी मेरा तो अब ड्रीम ये है कि आई वांट टू स्टार्ट फिटनेस चेन लाइक व्हाट वी डिड इन सऊदी, इन मिडल ईस्ट, इन पाकिस्तान. सो बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप दैट वी हैड, दे सेड कि यार लबैक हम भी आपके साथ आना चाहते हैं. So then I had bigger plans, so I said we want to raise some capital. So then a lot of Pakistani diaspora also jumped in, people who had accomplished tremendously abroad in all facets of life, business, investment banking, financial services, law, lawyers, doctors. So मुख्तलिफ लोग जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे आए. So we raised a fund and then that became the start of TriFit. So that's the long and short of it. I wanted to, if you really ask me selfishly speaking, I wanted to be close to my mother. I wanted to be close to my brothers. I wanted to spend my last inning of the test match. पहली इनिंग इंग्लैंड में खेली, दूसरी इनिंग न्यूयॉर्क में खेली, तीसरी सऊदी में. अब टेस्ट मैच की जो चौथी इनिंग है, I wanted to play in Pakistan. With my friends, with my loved ones, and in that process add value to the society as well. Of course. Thank you so much कि आपने इतने सफाई से और क्लैरिटी के साथ हमें समझाया, and it gives me a lot more depth in how exactly you planned and what's your motive that brought you back to Pakistan. And just going back to the starting point, that you call yourself the sacrificial goat. Mr. Shanur ke mashallah se he's really good at PR. So he connects with a lot of people, and when we came up with the idea कि हम podcast शुरू करते हैं, तो he bought me a list. He was like, यार इनमें से जो आप बोलें हम contact करते हैं, and we're gonna reach out to them and see, try our luck if they're willing to give us the time. So I was like, look, if it's our first podcast, तो हमें ऐसा एक बंदा चाहिए जो कि comfortable हमें भी करे, क्योंकि again एक है एक experience है communication का, मगर if you're in a new journey, in a new experience, at times you demand कि जो है ना एक certain knowledge हो, एक comfort हो, जो कि अगला भी आपको room दे. So far based on his suggestion I do feel that level of comfort. हमारे podcast से पहले भी अच्छे से बात हुई और आपने काफ़ी अच्छा background दिया उस पर. And while you were actually expressing about your journey as to why you came back to Pakistan, Allah आपके अब्बा को जन्नत नसीब करे. मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपके पर्सपेक्टिव से अगर आप यूके से यूएस नहीं जाते, सऊदी नहीं जाते, या फिर लेट्स से आप अगर यूके भी नहीं जाते, तो would you find yourself as a successful entrepreneur in Pakistan or in a better position? Because I know आपका लाइफ का जो साइकिल होता है वो ऊपर वाले के हाथ में होता है, वही आपका रास्ता बना के देता है. मगर I want to understand कि does this country has the potential for someone who lives here currently, who does not aims to go outside?
do that certain due diligence to actually get to that point जिधर वो एक successful entrepreneur बन सके up to the scale जिधर आप पहुंचे. It's a very interesting question. अच्छा हिशाम, मेरा जो है सिलसिला है वो ये कि I don't have a chip. God has blessed me or not blessed me. I don't have a chip to look back and regret on any of my decisions. मेरे system में है नहीं वो. Okay. So I don't know. I don't have I cannot process what if. Right? Fair enough. But let me make an attempt to answer that question. जब मैं पाकिस्तान से इंग्लैंड गया पढ़ने, so I had tremendous clarity कि chartered accountancy करने के बाद I would come back to Pakistan. I don't think I was ever confused कि मैं बाहर रहूँगा. ठीक है. और honestly speaking मुझे इंग्लैंड में रहना पसंद भी नहीं है. जब मैं क्योंकि I mean we used to spend a lot of time in the UK growing up, but it's okay for vacation, right? But I just couldn't see myself spending my life in the UK. Right. तो I was very clear. अब जो मैंने आपको बात बताई नहीं, I also told you कि alhamdulillah I've been very fortunate, very lucky from different perspectives. लेकिन मेरे साथ एक और हुआ ये कि as I said after CA I would have probably come back to Pakistan anyway. लेकिन हमारे छोटे भाई ने उस ज़माने में वो गोल्ड रश जो आजकल सऊदी अरेबिया का है, तो उस वक्त गोल्ड रश US का था. बिल्कुल. राइट. और अभी भी है काफ़ी हद तक. मे बी अब उतना नहीं जितना 90s में था. तो my brother at the time, my younger brother Dr. Zia Azam is number 2, the middle brother. So he applied for, उस ज़माने में लॉटरी में ना आप नाम डाल के, and all you do is address, आपका नाम, right, and your date of birth. Address, नाम and date of birth. आप डाल के US एम्बेसी को भेजते थे कि जी ये हमें लॉटरी पे. तो शाम उस लॉटरी में मेरा नाम निकला है. अच्छा. तो किसी का नहीं निकला. अब वो मजे की बात ये है. तो I was doing my chartered accountancy at the time in England. और you know as a student you'd move, right? You up, मैं अब डॉम में तो नहीं था मैं. I was living in apartments. ये करा था मैं. तो किराए के अपार्टमेंट में. तो मैंने एक अपार्टमेंट में रहता था मैं. अपेरेंटली मेरे भाई ने उसी अपार्टमेंट का एड्रेस डाल के मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल के उसने अप्लाई कर दिया होगा. अपना भी डाला होगा, मेरा भी डाल दिया. मैं उस अपार्टमेंट को छोड़ के चला गया. और 3-4 महीने बाद मैं एक दफ़ा उस सड़क पे से गुजरा. तो सड़क का नाम था कैविशम रोड. मुझे आज तक याद है. एड्रेस वॉज 302 कैविशम रोड. तो 302 कैविशम रोड के सामने से मैं गुजर रहा था. संडे आई सेड यार बड़े दिन हो गए, मैंने इनको आई शुड स्टॉप एंड मे बी देयर इज सम इम्पॉर्टेंट मेल. देन इमीडिएटली आई रिमेंबर्ड कि यार मेल क्या होगी, बैंक वो तो मैंने ऑलरेडी एड्रेसेस चेंज कर दिए, तो कौन सी इम्पॉर्टेंट. बट देन आई सेड यार यू नो व्हाट, अब मैं गुजर ही रहा हूँ तो रुक जाता हूँ. मैंने घंटी बजाई तो लैंडलॉर्ड, आई वाज लिविंग अपस्टेयर्स, तो नीचे लैंडलॉर्ड लेडी रहती थी. तो वो लेडी बाहर है, हाउ आर यू, दिस दैट द अदर. सो आई सेड कि यू नो आई वाज जस्ट पासिंग बाय, सो आई थॉट लेट मी से हेलो टू यू. सो मेरा मोटिव तो ये था कि शायद, तो शी सेड व्हाई एम wow, you came today, guess what I have. So उसने जो ग्रोसरी बैग होता है उसमें बहुत सारे लिफाफे भरे हुए थे. कहती you know I was going to throw this away today. This is all your mail that has come. All of it is junk. Because वो junk mail बड़ी आती थी ना नामों पे, फला कूपन, फला मैगजीन, फला न्यूज़पेपर. तो she said but it's here, might as well. So I said okay. मैंने वो लेके पीछे गाड़ी में यूँ फेंक दी. I was single. तो वो एक हफ्ता पीछे पड़ी रही. फिर एक दिन कोई वीकेंड पे मैंने सोचा कि चलो यार उसको अब मैं उठा के ना फेंक रहा हूँ गार्बेज. देन आई सी अ लेटर, कंग्रेचुलेशंस यू वन अ लॉटरी. सर यार ये क्या लॉटरी वॉटरी, उसको मैंने कहा गार्बेज. इसको मैंने यूँ फेंक दिया. वो लेटर को लकीली मैंने फाड़ा नहीं, मैंने उठा के यूँ करके वो गार्बेज के उसमें फेंक दिया, अपने जो स्टैक बन रहा था गार्बेज का. तो देयर वाज प्रॉब्ली 99.99% ऑल गार्बेज. Then you know I would speak to my parents. So मैंने फादर से मेरी बात हो रही थी. मैंने कहा ये वो और क्या चल रहा है. तो मैंने कहा you know it's interesting, यहाँ भी पता है. मैंने कहा डैडी यहाँ पर भी इस तरह की गार्बेज चीज़ें आती हैं. वो आया कि यार यू वन अ लॉटरी, आपको US की इमिग्रेशन निकल आई है आपकी. मैंने कहा पता नहीं क्या स्कैम है ये. तो माई फादर सेड हाँ भाई ये तुम चीज़ों से बच कर रहो, ये स्कैम्स वगैरह बड़े होते हैं. Conversation finished. Then so next day at a dinner table my dad was probably talking to my brother. और my यार वो अहमर कह रहा था कि उसको पता नहीं कोई स्कैम कर लेटर आया है कि जी आपकी US की इमिग्रेशन में. सो ब्रदर सर वो स्कैम नहीं है मैंने. तो फिर दे कॉल्ड मी, राइट. अरे अहमर क्या कर रहे हो, वो तो
तुम्हारी तो लॉटरी है. फिर आई वेंट बैक, उसको ढूंढा, वो लकीली वो लेटर फेंका नहीं था मैंने. So close call, very so close. that's how we got to the US. So ये तो खैर चलो एक that's how a life panned out, right? So I don't know कि how things would have been if I had come back to Pakistan. But I think that alhamdulillah, Allah का बहुत बड़ा शुक्र है. Just like I live a life of no regrets, I'm sure if I had come back, I would not live a life of regrets. I would still have a life of no regrets. मैं so sorry to cut you off there. मैं perspective में थोड़ा सा alter कर लेता हूँ question का. मगर अच्छा लगा कि आपने भी थोड़ा सा expand किया अपने उस पे, and I got to understand your perspective as well कि you don't have a chip. You just go with whatever the life directs you to, and you do not regret. What is past is past, and it's a good concept. I mean हर किसी को ऐसे चलना चाहिए. But जो initial मेरा जो question जो आपसे ये था कि if you were in Pakistan, क्योंकि आप right now you're functioning a business right now in Pakistan, तो जो आपको business opportunities, जिन लोगों से आपको interaction का opportunity मिल रहा है, तो वो room जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, because I'm sure there are a lot of challenges over here as well, जो आपको बाहर के मुल्क में नहीं मिले होंगे, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, but you are countering them one by one. तो एज अ पर्सन जिसको एक्सपोजर बाहर का नहीं मिला हो, जब वो और पाकिस्तान में ही ब्रॉट अप हुआ हुआ है एंड ही वांट्स टू सेट अप अ बिजनेस, डू यू थिंक अ पर्सन लाइक यू अगर उस स्टेज पे होता वुड हैव बीन प्रोवाइडेड अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज जो आपको बाहर मिले थे? अगेन यार फिर मैं I'll try to answer that question. Again, not from a perspective कि जी what if, right? कि मुझे नहीं पता. I'm just, but let me attempt. उसका देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर if you ask me कि what do you think, अभी आपको कैसा लगता है? Well, then the answer is I gained tremendously by living abroad, because I succeeded, and I take no I have absolutely बहुत मैं responsibly मैं state कर रहा हूँ इस वक्त जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपसे, बहुत responsibly, कि मैंने ज़िंदगी में तरक्की करी है because of the fact that I am from Pakistan. जो तरक्की अल्लाह ने मुझे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने अगर गोरों के साथ काम किया तो मैंने गोरों को भी पीछे छोड़ा. तो मैं तो अपने मुल्क का याद नहीं हूँ ना, राइट? तो मुझे जब लोग होते हैं यार यहाँ पे हम पाकिस्तान में आते हैं, कहते हैं यार वो हमें यार वो गोरों को ना, तो मैं कहता हूँ यार बट हम तो बेहतर है गोरों से. आपको मतलब यू नो आई एम सॉर्ट ऑफ नॉट, मुझे ना वो जेंडर समझ में आता है, ना मुझे कोई नेशनैलिटी समझ में आती है, ना मुझे कोई एथनिक बैकग्राउंड समझ में आता है. मुझे ये समझ में आता है कि आपको क्या आता है. तो पाकिस्तान के अंदर भी जो चैलेंजेस है एब्सोल्युटली बहुत मॉन्यूमेंटल चैलेंजेस हैं, तभी तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अगर चैलेंज नहीं होंगे तो अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी? तो मेरी नज़र में तो आई लुक फॉर चैलेंजेस, राइट? बिकॉज जब चैलेंज होगा तो हम सॉल्व करेंगे तो उससे सक्सेस निकलेगी. और पर्सपेक्टिव की भी अगर बात है, where there's challenge there's opportunity. When Nike was expanding internationally, तो they sent a group to a lot of different regions. यूरोप में भेजा, किसी को इंडिया में भेजा, तो एक ग्रुप गए थे अफ्रीका में. तो वहाँ पे रिसर्च करने, मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट निकालने के भाई is there an opportunity for us or there is no opportunity. They sent two groups. They sent two groups, and the first group came back saying that कि जो है ना there is no opportunity because no one wears shoes over there. And the second group came with a completely different perspective क्योंकि they saw the challenge and the opportunity. They said no one wears shoes, so it's a big market. मतलब हर कोई खरीदेगा हमसे because they want shoes. I mean no one's wearing it in the first place. यहाँ तो फैक्ट्री लगाएं. बिल्कुल. तो मैं इसी पर्सपेक्टिव को अगर मैं पाकिस्तान में भी देखना चाहूँ कि अगर एक यंग जनरेशन में अक्सर इस एज पे जो है ना, आप अगर सोशल मीडिया में भी आप एक्सपोजर देखें तो हमारे नौजवानों को जो सबसे बड़ा जो चैलेंज जो मिलता है ना, कि आप लोगों के टाइम पे आप लोगों को जो सक्सेसफुल लोग जो नज़र आते थे ना, उनका हिस्ट्री जान के पता चलता था कि इसने ये किया तब जाके ये बना है. आजकल के आप सोशल मीडिया में आप देखें, एक बंदे ने एक डांस कर लिया तो उसके ट्रेंड पे उसने कमा लिया, करोड़ों में कमा रही, इज अ सेलिब्रिटी नाउ. तो इतने ज़्यादा मिसाल बन रहे कि आप मेहनत ना करके जो है ना, यू कैन बी ए मिलियनर, बिलियनर. तो वो जो कॉन्सेप्ट जो हमारे जो यंग जनरेशन में बैठ रहा है ना, कि पीपल आर लुकिंग फॉर इजी एक्सेस, कि जिधर फास्ट मनी करे.
تو اب باہر کے ملکوں میں آپ کو سروائیول سے اسٹیبل لیول پہ لانا از اے لاٹ ایزیئر ٹو گیٹ ان ادر کنٹریز. مطلب آپ ایک جو ہے نا 9 to 5 جاب کریں گے اور آپ کا جو انکم ہوگا آورلی ویج پہ, یو کین ایکچولی افورڈ ٹو رینٹ این اپارٹمنٹ, یا پھر ایک چھوٹا سا آپ جگہ لے لیں, اپنا لیونگ ایکسپینس کھانا پینا وہ سب اکاموڈیٹ ہو جاتا ہے. مگر پاکستان میں وہ لیول کو اچیو کرنے از اے لاٹ مور چیلنجنگ, کیونکہ آپ کا جو 9 to 5 جاب بھی آپ کو اس لیول آف سبسٹینشیل انکم نہیں دیتا کہ یو کین افورڈ آل آف دیٹ. تو آئی ہیو سین اے لاٹ آف پیپل ڈوئنگ 2 jobs اینڈ آل دیٹ. تو خیر گوئنگ بیک ٹو مائی انیشیل آئیڈیا کہ جب ایزی ایکسیس کا جو کانسیپٹ جو یہاں پہ دیا گیا ہے تو پیپل لک ایٹ کنٹریز اپرچونیٹیز جو یہاں پہ اگر نہیں ہے تو باہر دیکھا جائے جدھر ہم جلدی اس ببل سے باہر نکل سکیں. So they're not willing to put in that effort. تو میں دکھانا یہاں پہ جو ینگ جنریشن کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ٹائم از آلسو ویلیوبل, کہ آپ فیلیئرس کے تھرو بھی جاتے ہیں تو اٹس فائن, یو آر لرننگ ایٹ دیٹ ٹائم. کہ ضروری نہیں کہ آپ جتنے فیلیئرز ہیں یو لوزنگ ٹائم اینڈ یو وونٹ بی ایبل ٹو گیٹ دیٹ. آئی مین یس, ایوری ون ہیز ٹو ڈائی ایٹ سم پوائنٹ. تو دا مور ٹائم یو آر ڈیڈیکیٹنگ دا مور یو آر لرننگ, اور اس کے حساب سے آپ کا کمٹمنٹ بھی بنتے رہتا ہے کیونکہ یو آر گیٹنگ مور ایکسپوجر ٹوورڈس آل آف دس. تو وہ جو آئیڈیا ہے جو نوجوانوں میں کہ جو ہے نا آپ کم محنت کیے زیادہ بنا سکتے ہیں, میں اس آئیڈیا کو ڈیزالو کرنا چاہ رہا ہوں. آئی وانٹ ٹو شو کہ اف یو کمٹ ٹو این آئیڈیا اور اس پہ آپ زیادہ ٹائم لگائیں تو اس کا سسٹینیبلٹی کا بھی آپ کو ایشورنس ملتا ہے. کیونکہ اف یو اچیو سم تھنگ آن اے شارٹر ٹائم فریم اینڈ یو آر رچ, دیر از اے ویری گڈ چانس یو مائٹ لوز اٹ ان اے منتھ اور سو. صحیح, کیونکہ اس پہ آپ نے محنت نہیں کی, اس پہ کمٹمنٹ, آپ کا ڈیڈیکیشن نہیں ہے. یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا لیول آف سویٹ دیٹ یو ہیو انویسٹڈ آن ٹو اٹ. تو واٹ آئی وانٹ ٹو شو کہ آپ کو جو ہے نا اس اسٹیج پہ آنے کے لیے جو ہے نا آپ کو جو ایفرٹ کرنا پڑا اس کانسیپٹ کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. بیکاز رائٹ ناؤ ہم لوگ کا یہ ہے کہ ہماری کلیئرٹی نہیں ہے اکثر سچویشن میں, کہ فرام اے ینگ انڈیویجول وی کم اپ ود آئیڈیاز مگر وی ڈونٹ کم اپ ود پلانس, کیونکہ پلانس ریکوائر ٹائم. اور جب آپ نے ان جو اسٹیپس جو لیے ہیں, ڈیڈ یو ہیڈ لائک اے فورکاسٹ ان یور مائنڈ, ڈیڈ یو ہیڈ لائک اے پلان, اور were you just going with whichever life was throwing at you and just finding grounds جس پہ آپ کور کر سکے؟ تو what was your journey like? یار شام, آپ نے جو بات جو کری, and I was listening to you very intently. Frankly, to be honest, I think your just 2-3 minute comment that you made in itself should be a reel. Okay. And I think people should pay attention to that. I mean, I could really comment on each sentence that you mentioned. So it's pretty loaded, right? لیکن آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے, جس میں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے, رائٹ, جس کی وجہ سے سکسیزفل ہوتے ہیں, اور میں نے وہ کیا چیزیں فالو کری. دیکھیں 2-3 چیزیں. پہلے تو یہ کہ بہت ساری چیزیں جو آپ نے بتائی نا, دیٹ ہیز ٹوڈے بیکم اے یونیورسل پرابلم. جس طرح میں نے بتایا کہ یونیورسل ایکسیس ٹو انفارمیشن اب ہے نا, جو میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کو مینشن کیا, اسی طرح سے اب جو پرابلمس بھی کافی سارے یونیورسل ہیں. فار انسٹنس انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور مائکرو ویو مینٹیلٹی از اے گلوبل پرابلم ناؤ, رائٹ, اٹس اے پرابلم. ناؤ میگنیچیوڈ چینج ہو سکتا ہے, اس کی انٹینسٹی, اس کا میگنیچیوڈ چینج ہو سکتا ہے فرام کنٹری ٹو کنٹری, فرام جیوگرافی ٹو جیوگرافی, بٹ اٹس اے پرابلم. مینٹل ویلنس اور لیک آف اٹ is a global pandemic now. It's a problem. Now, again, as I said, آپ کہیں گے نہیں جی کراچی میں تو 99% لوگ پاگل ہو گئے ہیں اب, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہو گئے ہیں, ہو سکتا ہے کم ہو سکتا ہے 60 ہو سکتا ہے 70 ہوں, بٹ نیو یارک میں ایسا نہیں ہے, یا یو ایس میں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر 0% ہے. وہاں پر بھی I was attending a conference, I was a keynote speaker at a conference in Los Angeles, the largest fitness convention, wellness convention, and there too we were just talking about mental, they were not talking about Pakistan, right, they're talking about global issues, and US as well, big problem. تو پہلی بات تو یہ گڈ نیوز اور بیڈ نیوز is that the issues that you're facing with, to a level of intensity, those issues persist all across the world today. پہلی تو یہ بات ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, which means کہ اگر کوئی پاکستان سے بھاگ کے جا رہا ہے ملک سے باہر کہ جی وہاں جا کے the grass is greener on the other side, well you probably find a very difficult answer. ٹھیک ہے, جب آپ پہنچیں گے وہاں پہ جو reality is different. The grass is only greener where you water it. Right. جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پر ہی جب پانی ڈالا جائے گا
और ये नहीं कि जी वो हुकूमत ने पानी नहीं डाला, ठीक है, गार्डन तो आपका है ना, बिल्कुल ये वाले गार्डन की बात कर रहा हूँ। इस गार्डन में आप क्या डाल रहे हैं? तो इस गार्डन में अगर गार्बेज आ रहा है तो गार्बेज आउट भी होगा, राइट? और जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि मैं गार्बेज नहीं डालूंगा, आई कैन गारंटी यू, एंड दिस इज ऑल्सो आई एम सेइंग इट वेरी रिस्पॉन्सिबली, कि मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि जो आपको ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन एफर्ट, जिस दिन आपने फैसला किया कि आई विल टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ एंड आई विल स्टार्ट बिहेविंग हाउ आई वुड बिहेव अब्रॉड प्रोफेशनली, आपको इस मुल्क में कहीं ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। हम अपनी कंपनी में, यू नो, वी आर स्मॉल कंपनी टुडे, बट ऑब्वियसली alhamdulillah in a span of 15 months, 16 months, we have become Pakistan's biggest fitness brand today, alhamdulillah, and growing faster and faster and bigger. But हमारी organization अभी छोटी है, you know, we've delivered about 100,000 plus square feet of fitness, world-class fitness facility in Karachi and now going pan Pakistan. तो हमारे पास कोई 200 लोग के करीब काम करते हैं. But I tell them, I said, यार, if you're willing to give the effort that you'd give if I give you a job in Dubai or London and New York, आप वो वर्क एथिक डेवलप कर लें और वो एथिक्स डेवलप कर लें, तो मैं 3 साल में मेरी कंपनी के मैं ही आपको CEO बना दूँ. प्रॉब्लम ये है कि आप कहते हैं जब आप मुझे CEO बनाएंगे और जब आप मुझे एक अच्छी सी बड़ी गाड़ी देंगे और जब आप मुझे मिलियंस या लाखों की सैलरी देंगे, जब मैं ये सारी चीज़ें शुरू करूँगा, तो फिर तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज़ कि मैं एक फायर प्लेस के सामने खड़ा हूँ और मैं फायर प्लेस में बोल रहा हूँ यार आई वांट हीट, एंड द फायर प्लेस इज सेइंग यार प्लीज पुट वुड. अब से नहीं यार, वुड अब जब डालूंगा जब तुम हीट दोगे, तो ये तो होगा नहीं, ना ये होगा और आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी. यार, प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस डोंट चेंज शाम, प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस डू नॉट चेंज. यूनिवर्सल लॉज हैं कुछ. सूरज ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में सेट होता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा. जिस दिन वो चेंज होगा उस दिन क़यामत आ जाएगी. इसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस है. प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, माजरत के साथ, the reason West is successful is not because of any other reason. They are successful because they follow ethics. वहाँ पे सच बोलते हैं. अल्लाह मियाँ ने बोला कि सुबह सवेरे उठें तो रिस्क बढ़ता है. जब आप सवेरे उठते थे तो रिस्क आपको मिलता था. न्यूयॉर्क में, US में, इवन दुबई में, आज दुबई में जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है वो सुबह 6 से 9 बजे होता है. आपके यहाँ 6 से 9 जो है आप शारा फैसल पे जो है ना वो आप स्पीडिंग करें, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आप सब सो रहे हैं. तो रिस्क तो उनको मिलेगा ना. जहाँ पर अल्लाह का जो रूल है, ईस्ट और वेस्ट का रूल मुसलमानों के लिए नहीं है कि सूरज के पाकिस्तान में और सऊदी अरेबिया में सिर्फ सूरज ईस्ट से निकलेगा और वेस्ट में सेट होगा. वो तो पूरी दुनिया का रूल है. तो जब खुदा ने रूल बना दिया कि जी मैं रिस्क सुबह बांटता हूँ, तो उसको मिलेगा ना जो जाग रहा होगा. वो नहीं सोच रहा है कि यार कौन क्रिश्चियन है, कौन हिंदू है, कौन अमेरिकन है, कौन जूविश है, वो तो उसको ही मिलेगा जो उठेगा. आप सो रहे होंगे तो आपको नहीं मिलेगा. फिर उन्होंने बोला यार आप सच बोलें तो आपको बरकत मिलेगी. यू नो, ब्लेसिंग्स तो आसमान से गिर रही हैं. हिशाम, यू गाइज आर यंग, राइट, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन. अल्लाह की ब्लेसिंग्स गिर रही हैं, बट व्हाट वी डू इज दैट वी क्रिएट ब्लेसिंग ब्लॉकर्स अपनी हरकतों से, राइट. आप झूठ बोलेंगे, आपने विंडो बंद कर दी, विंडो की थोड़ा सा और बंद कर दी. अब वो ब्लेसिंग जो है ना, वो जो पहले इतनी सारी गिरने वाली थी, अब वो कम हो गई. फिर आपने किसी का हक मार दिया और कम हो गई. फिर आपने हिपोक्रेसी कर ली, मुनाफकत कर ली और कम हो गई. करते करते आपने इतनी छोटी सी कर दी कि अब उसमें सिर्फ जो है ना वो कतरे ही गिर सकते हैं. अब कतरा जहाँ पे तो समंदर की तरह आना चाहिए ब्लेसिंग 25 करोड़ लोगों के ऊपर, वहाँ कतरा गिर रहा है और नीचे 25 करोड़ लोग बैठे हैं. वो कतरा कैसे आएगा? मिलेगा ही नहीं. तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस, मैं यूथ को ये समझाता हूँ कि भाई आप एथिक्स तो डेवलप करो और वर्क एथिक डेवलप करो. ये दो अलग चीज़ें. ये तो डेवलप करो बिकॉज बाहर जाके भी आपको, जब आप जहाज बैठ के दुबई पहुंचते हैं, वहाँ इंसान बन जाते हैं, लाइन भी लगते हैं, ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं तोड़ते, रूल्स को फॉलो करते हैं. पता है कि झूठ बोलेंगे तो या हाथ काट देंगे, जेलें बंद कर देंगे. वहाँ पे आप 2 घंटे की फ्लाइट के बाद इंसान बन जाते हैं. तो यहाँ क्यों नहीं बन जाते इंसान? करप्शन करके पैसे कमाए हैं तो वो रोल मॉडल्स हो गए. तो अब तो बट देन इतना अल्लाह मैंने तो मुझे दिमाग दिया है ना कि आई शुड नो कि कौन सही रोल मॉडल है और कौन खराब रोल मॉडल है, राइट. ठीक है. तो अगर हमने वो सेंस लूज कर दिया है तो फिर इसका मतलब प्रॉब्लम इज अगेन विथ दिस थिंग, नॉट विथ व्हाट्स अराउंड मी, राइट. बिकॉज व्हाट्स अराउंड मी कुड ऑल बी रॉन्ग, बट हैव आई ऑल्सो लॉस्ट द सेंस ऑफ making a distinction between what's right and what's wrong, what is worth following and what is not worth
following. ये distinction ये अल्लाह ने आपके दिमाग में दिया है. तो हमने अगर अपने दिमाग को ही जो है ना वो फ्राई कर दिया है और हम कचरा भरे जा रहे हैं और हम मक्खी खा रहे हैं, मुंह खुला हुआ है और मक्खी जा रही है, मक्खी आ रही है, मक्खी जा रही है, मक्खी आ रही है, आपको होश नहीं है. तो प्रॉब्लम इज विथ यू, बिकॉज आप मुंह बंद कर सकते हैं अपना, राइट? मना तो नहीं है मुंह बंद करना, नहीं. आपको जबरदस्ती है कि मक्खी खाना जरूरी है, आपको रोज उसी केले के छिलके में फिसलना जरूरी है. भाई एक दिन केले के छिलके फिसल जाओ, मिस्टेक कर लो, अगले दिन खरबूजे के छिलके फिसल जाओ, तीसरे दिन आम के, नई एक्सपीरियंसेस करो. अगर आप रोज एक ही छिलके पे फिसलेंगे, सो who's द स्टूपिड वन, राइट? तो इशू हमें अपने अंदर अपने आप को फिक्स करना है. तो यूथ के लिए जो मैसेज है वो ये कि टुडे यू हैव अ चॉइस टू पिक योर रोल मॉडल्स. यू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यू कैन चूज टू फॉलो यू वांट टू फॉलो. इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स जो ब्रेन ड्रेन हुआ है वो उससे हमें नुकसान हुआ है, राइट? उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. क्योंकि मेरा हिशाम जो पर्सपेक्टिव है लाइफ में वो ये है कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री इज एक्चुअली एंड्स अप बिल्डिंग दैट कंट्री. कनाडा में 30 मिलियन लोग रहते हैं तो उनके 3 मिलियन लोग बहुत स्मार्ट हैं, 27 मिलियन शायद नहीं है, बल्कि 27 मिलियन इतने डम होंगे शायद कि आप कहेंगे यार इनको तो मेरे ख्याल से गाँव में रखना चाहिए, बाहर भी नहीं छोड़ना चाहिए इनको, राइट? इसी तरह से यूएस के अंदर भी आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ स्टूपिड पीपल, लेकिन 300 मिलियन में 30 मिलियन ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं. आपके मुल्क के जो 10% हैं वो जाके दूसरों के मुल्क बना रहे हैं. अमेरिका का जो 10% है वो अमेरिका बना रहा है. इवन सऊदी अरेबिया भी जो आज इतनी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी बन गई, इतनी पावरफुल इकोनॉमी बन गई, बिकॉज सऊदी का भी जो 10% है टॉप ब्रेन वो सऊदी को ही सर्व कर रहा है. हमारा जो टॉप ब्रेन है वो बाहर चला गया, तो यहाँ कौन रह गया फिर? सी और डी ग्रेड. देखें जॉब्स तो लेनी है ना. अब ये पॉडकास्ट किसी को करना है और किसी को यहाँ से भी करना है. तो अगर हम दोनों अगर क्वालिफाइड लोग नहीं हैं टू डू दिस जॉब, तो जो कर रहे होंगे वो क्वालिफाइड नहीं होंगे, मगर वो जो सीट पे बैठे होंगे उनको लग रहा होगा कि वही मोस्ट क्वालिफाइड है. तो आपके दफातर में, आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, आपके इवन कॉर्पोरेट्स में सबकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि सब तो नहीं हो सकते. बहुत काबिल लोग हैं यहाँ पर, एंड आई हैव मेट पीपल इन द गवर्नमेंट, ब्रिलियंट पीपल. सम ऑफ देम हैव बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स आल्सो ऑफ माइन. ब्रिलियंट पीपल, दे वुड सक्सीड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट? वो यहाँ पर भी बहुत सक्सेसफुल हैं, गवर्नमेंट में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, लीगल सिस्टम में हैं, बिजनेस के अंदर भी हैं. बट वास्ट मेजॉरिटी आर सी एंड डी ग्रेड स्टूडेंट्स. अब अगर जो सी और डी ग्रेड स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपने बोला जी वो बिल गेट्स भी तो हाई स्कूल ड्रॉप आउट है. अच्छा, हमारे ना इस तरह की एग्जाम्पल्स को प्रोसेस नहीं कर पाते कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है. अगर बिल गेट्स या इलॉन मस्क या स्टीव जॉब्स अगर हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स हैं, बट दैट इज एन एक्सेप्शन, नॉट द रूल. हम समझते हैं कि चूंकि हाई स्कूल से वो ड्रॉप आउट हुए हैं तो पूरी कौम को स्कूल ही जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही रास्ता है. शायद अगर किसी ने टिकटॉक वीडियो करके उसकी 10 मिलियन फॉलोइंग हो गई तो हम समझते हैं शायद यही रास्ता है कामयाबी का, राइट? एक अजीब शॉर्टकट मेंटालिटी है. एक तो कल्चरली बहुत बुरी चीज़ है ये. हम एक सोसाइटी हमने बिल्ड कर ली है कि हमें T20 खेलना है, 3 डे नहीं खेलना, टेस्ट मैच नहीं खेलना, मैराथन नहीं रन करनी, 100 मीटर स्प्रिंट करनी है खाली. भाई हमने काफ़ी चीज़ों में एक्सप्लोर किया आपका फ़िलॉसफी में कि आप सोचते कैसे हैं व्हाइल यू वर इन योर बिजनेस एडवेंचर. और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि फॉर एवरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन उसमें सिर्फ आपका क्रिएटिविटी, आपका कमिटमेंट के साथ साथ आपका मेंटल हेल्थ भी काउंट किया जाता है. और मेंटल हेल्थ को द बेस्ट वे टू पुट इट, कीप इट इन द बेस्ट पोजीशन इज़ आई थिंक इज़ फिजिकल हेल्थ. जिसको आप मेंटेन करते हो आपका मेंटल हेल्थ भी काउंटर हो जाता है. एंड फॉलोइंग दिस आइडिया, सिंस यू आर टेकिंग अ बिग रोल in Pakistan's health and fitness center, TriFit. I would like to know कि आपका क्या perspective and why do you think it's essential for the youth to divert themselves towards this fitness journey? I think it's a very, very relevant question today.
and very relevant question globally, but also for Pakistan. The reason it's very pertinent for Pakistan is because आज जहाँ पर हम बड़े जल्दी दुनिया के हर गलत मार्कर, गलत इंडेक्स के ऊपर हम नंबर 1 स्कोर कर रहे हैं, fastest in terms of childbirth, highest childbirth, poverty index में ऊपर आ रहे हैं, ease of business में नीचे जा रहे हैं, हम हर गलत मेट्रिक के ऊपर हम नंबर 1 पोजीशन ले रहे होते हैं. इसी तरीके से हम अपनी हेल्थ और फिटनेस का जो इंडेक्स है उस पर आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी यू विद अ वेरी हैवी हार्ट कि वी आर probably one of the poorest performing country in the world today. तो आप एक छठी मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड हैं, 25 करोड़ की पॉपुलेशन है आपकी, और आपका जो हेल्थ मेट्रिक है, फिटनेस का मेट्रिक है, वो बहुत पुअर है. तब उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए पहला तो ये है कि आपको उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप खड़े कहाँ पर, राइट? अगर आप रिकग्नाइज नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को पहचानेंगे नहीं, तो आप एड्रेस ही नहीं कर सकते. ठीक है. अब आपने जब उसको रिकग्नाइज कर लिया तो फिर हमने जो बहुत सारी बातें करी इन टर्म्स ऑफ वर्क एथिक, सवेरे उठना, ढंग से खाना, ये सारी चीज़ें अब आज के दौर में जो है, अगर किसी को पता नहीं है कि उसको सवेरे उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए, तो वो फिर इसका मतलब कि वो गलत टिकटॉक देख रहा है. ठीक है ना. तो हमें इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है, पहले नहीं थी. पहले यू हैड टू बी एट अ सर्टेन स्कूल, सर्टेन एजुकेशन. जैसे आप माशाल्लाह एक टॉप स्कूल ब्रिटिश BIS से, ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल से आप पढ़ के निकले हैं, तो ये सब अच्छे स्कूल्स हैं. वो पहले था कि प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन फॉर प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ पीपल, राइट? अब ये ऐसा नहीं है. अब इट्स ऑल अवेलेबल एवरीवेयर एज लॉन्ग एज यू आर टैपिंग इनटू द राइट रिसोर्स, राइट, एंड फ्रीली अवेलेबल. तो मैं तो सबसे पहले यही बोलूँगा कि देखें जी, दिस इज़ कॉल ऑफ द डे. ठीक है. आप डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं. हाईएस्ट डायबिटिक पर कैपिटा पाकिस्तान में इस हाईएस्ट हो गया. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट? और उस मुल्क में डायबिटीज़ है जहाँ पर आपके पास खाने को खुराक कम हो गई है, खुराक कम हो रही है आपकी, और वहाँ पर आपके पास डायबिटीज़ है. डायबिटीज़ इसलिए नहीं है कि सिर्फ लोग शक्कर ज़्यादा खा रहे हैं. डायबिटीज़ इसलिए बिकॉज आपका लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्थी है, उनको पता ही नहीं है, राइट? वो कुछ लोग चाय में शक्कर डालते हैं, या अक्सर लोग शक्कर में चाय डालते हैं, राइट? रोटी, व्हीट इज़ अ किलर, राइट? हम समझते हैं वीट खाना चाहिए, सफ़ेद आटा खाना चाहिए, इट्स अ पॉइजन, राइट? तो ये बहुत सारी चीज़ें. अब ये आप कहेंगे अच्छा है, मुझे पता नहीं था. आपको तो खैर पता है, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन जिसको पता नहीं है तो इसका मतलब वो गलत टिकटॉक देख रहा है. इन्फॉर्मेशन तो उसके पास अवेलेबल. तो पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करें एंड पीपल कैन स्टीयर देमसेल्व्स. हम ट्राईफिट के ज़रिए क्या कर रहे हैं हिशाम? वी हैव अ वेरी सिंपल मिशन, एंड दिस इज़ नॉट ए ट्राईफिट मिशन, दिस इज़ अ मिशन फॉर द कंट्री एंड फॉर द नेशन, टू स्टीयर सोसाइटी towards a healthy lifestyle and encourage people to exercise regularly and make healthy choices. अब वो एक्सरसाइज ट्राईफिट में करें, किसी और जिम में करें, पार्क में करें, अपने घर में करें. हेल्थी चॉइसेस ट्राईफिट में आके लें या कहीं और लें, बट लाइफ में अगर वो हेल्थी चॉइस, आज आपकी बॉडी अल्लाह ने डिज़ाइन जो करी 120 साल के लिए. जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे तो वो 900 साल की उम्र जिंदा है, राइट? आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल जिंदा रहे. इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई 400-500 साल उनकी उम्र थी, राइट? आज जो आपकी बॉडी है वो 120 साल के लिए डिज़ाइन हुई. मगर आपकी अगर एवरेज एज 55 ईयर्स है, तो देन इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम. देयर इज समथिंग मैसिवली wrong that is happening in this country. And it's not about the fact that poor people who are uneducated, मैं अभी बड़ा रिस्पॉन्सिबली बात करने जा रहा हूँ, ये नहीं है कि जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं ये वो गलत चॉइसेस ले रहे हैं. मैं तो शौक में हूँ कि यहाँ पढ़े लिखे लोग कितनी गलत चॉइसेस लेते हैं. Just day before yesterday, a very dear friend of mine from an extremely affluent family lost his nephew at the age of 30 because of extremely unhealthy lifestyle. तो क्या उसके पास एजुकेशन नहीं थी? ऑफ कोर्स थी. बट एजुकेशन के बाद हम अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैं जाता हूँ या डिनर्स में लोग बुलाते हैं, मैं तो घर से खा के जाता हूँ. 11 बजे रात को वो माशाल्लाह हमारे दोस्त अहबाब जिनके साथ हम बैठते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, जिनके पास इतने पैसे हैं माशाल्लाह कि वो पूरे रेस्टोरेंट्स बुक कर सकते हैं रोज़. और रात को 11 साढ़े 11 बजे उस बुफ़े में
उस डिनर पार्टी में ऐसे खा रहे होते हैं जैसे कल सुबह उनको मिलने वाली नहीं. तो ये अनएजुकेटेड लोगों का अगर ये हाल है तो बेचारे अनएजुकेटेड. जब मेरा ड्राइवर है या मेरे घर का कुक है, अगर उसको सर जो है वो टाइगर प्रॉन नहीं मिल रहे तो चलो उसने अगर पहाड़ बना लिया प्लेट पे तो अंडरस्टैंडेबल. आप अगर रोज़ रात को आप ऐसे खा रहे हैं पहाड़ बना के टाइगर प्रॉन्स, ऐसे आपको मिलेंगे नहीं, वो भी रात को 11 बजे 11:30 बजे, तो देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग. सो दुनिया में आप कहीं और चले जाएं, एजुकेटेड क्लास में आप किसी सेमिनार में जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, वहाँ लोग जितने एजुकेटेड हैं उतना हेल्दी खा रहे हैं. हमारे मुल्क में जितने एजुकेटेड हैं वो इस तरह खा रहे हैं जैसे कल सुबह फजर उनको नहीं मिलने वाली, और ना वो जिम जाते हैं. असल में आखिरी बार मजाक में कह रहा हूँ मैं आपसे शाम, मैं अक्सर अपने दोस्तों से बोलता हूँ आखिरी बार अपने अपने पैर को कब देखा है खड़े होके, क्योंकि बीच में इतना बड़ा पेट आ रहा है. एंड इट्स दे ऑल लाफ अबाउट इट. I don't want to mention names, but yesterday I was at a funeral in a masjid. So one gentleman walked up to me. And the reason I'm saying it because he was a very, very dear friend of mine. And when I met him after so many years, he was one of the most good-looking guys that we had in our school. And I had lost touch with him. So I came back. He did speak with me. उनका फ़ोन आया था एक दो बार किसी काम के सिलसिले में, but मैं उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी. So the guy walks up to me and he says, Amar. So I said, Gee. So out of politeness, I met him because he wanted to hug me. So I hugged him also. But I'm sure he probably saw it on my face that I didn't recognize him. Very dear friend of mine, but lost touch since 88 was probably the last time I saw him. Maybe in the 80s. तो उसने बोला यार तुमने मुझे पहचाना नहीं. मैंने कहा यार I am sorry, मैंने वाकई नहीं पहचाना. तो उसने अपना फर्स्ट नेम लिया, मैं फिर भी, जब उसने मुझे अपना पूरा नाम लिया मैं शॉक में आ गया. He was one of the most good looking guys in the school. And he was like a football. I felt sorry for him. He was a football, round, when I saw him. I said, इसको क्या हो गया यार? ये तो वो लड़का था जिसके पीछे लड़कियां पागल होती थी. Good looking, handsome guy. इसने क्या असर कर लिया अपना यार? हाँप रहा था सांस, मतलब मस्जिद में खड़े होके हाँप रहा था. I think 10 steps लेके आया होगा. मैं नाम नहीं ले रहा उसका, बट मेरा दिल दुखा अपने उस दोस्त को देख के. दिल दुख गया मेरा. Why? ये नहीं, पैसे नहीं, इतने पैसे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता आपको. माशाल्लाह पैसे वाले लोग. क्यों आप अगर पैसे हैं और आप फिर भी अपने आप को रोज मार रहे हैं, ऐसी जिंदगी का फायदा क्या यार? बिल्कुल. Sorry, I get emotional about it. My apologies. But my heart breaks यार. You know, अगर कोई गरीब आदमी गलत चॉइसेस ले रहा है तो आप चलो जस्टिफाई. एक पैसे वाला एजुकेटेड आदमी जिंदगी में रोज गलत चॉइसेस ले रहा है, उसके साथ आप क्या करेंगे यार? Who's going to slap sense into these people? Somebody's got to do it. Maybe now I'm 53-year-old. I have a bit of a license with my grey beard that I can speak vocally. नहीं, माशाल्लाह, you have kept yourself very fit. Yeah, alhamdulillah. No. I try to. माशाल्लाह. I try to. Thank you. नहीं, honestly इसमें फैमिली का भी एक्टिव जो है ना पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है. अक्सर मेरे खुद फैमिली में एग्जांपल हैं, मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो भी काफ़ी बिज़नेस में काम वाम कर रहे हैं और काफ़ी लोड है फैमिली का, और भी बहुत लोगों को संभाल रहे हैं. तो मेरे वालिद बैठे थे इनके साथ, तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन उनके स्टाफ ने इनके आगे दवाइयाँ लाई. तो दवाई का वो जो स्ट्रिप आपने देखा होगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इतना लंबा, तो पहले खोल के उनमें से 6 दवाइयाँ ने निकाल के दिए अब्बा के आगे. तो मेरे वालिद देख रहे तो बोलते क्या कर रहे हो? बोलते हैं कि ये शायद भाई कि इनके बगैर मैं चल नहीं सकता, इसी से तो चल रहा हूँ. अब्बा बोलते हैं इनके बगैर आप चल नहीं सकते हो. अब यहाँ पे डॉक्टर्स का भी, उसमें मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, मगर उनका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि the more they prescribe you with medication, they're being paid for it. Ethics. The point where we're meeting again. तो उस बेसिस पे मेरे अब्बा ने बोला कि you have the access to the club, तुम वॉक पे जा सकते हो, you have funds, कि you have staffs that are managing your work, तुम टाइम निकाल सकते हो. अभी पहले नहीं होता, I would understand, but right now you're in that position where you can actually dedicate it. You don't need all of these medication. तुम आधे से ज़्यादा तुम इसको हटा सकते हो, just based on purely relying on working out. And he pushed him for the following week. बोलते हैं क्योंकि मेरे अब्बा is a regular मतलब फिटनेस में लोग एफर्ट करते हैं, तो he took him forcefully. तो एक हफ्ते गए and then he came to a realization. Then he started taking his kids, his wife.
अब उनके बेटे को भी मैं देखता हूँ, अगेन नाम नहीं लूँगा, तो वो भी ऐसे था within 3 months of working out. His dedication is better than mine, if I'm being honest. That guy slimmed down and lost around 30 kgs. उसको मतलब इतना dramatic weight loss किया, मैंने बोला, are you taking like drugs or anything? He's like, no, this commitment. He cooks his own food, goes to the gym himself, although he can hire a cook, मगर उसको शौक बन गया है, commitment हो गया because he's seeing results. तो आई थिंक कि जब मोटिव चेंज हुआ है तो उसका नेचर चेंज हुआ है, कैरेक्टर चेंज हुआ है. एंड एक नेवी सील का एक सेइंग था, मैं रील देख रहा था, उसमें वो बोलते हैं कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू हैव टू स्टार्ट ऑफ विद मेकिंग योर बेड इन द मॉर्निंग. तो मैं ये कॉन्सेप्ट समझा नहीं, मैंने बोला बेड का क्या ताल्लुक है सक्सेसफुल होने से. इट्स लाइक व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ साइकिल ऑफ कमिटमेंट इन योर लाइफ कि आप हर सुबह बेड बना रहे हो, आप हर सुबह वॉक पे जाओ, हर सुबह वर्कआउट कर रहे हो, तो आप वही कॉन्सेप्ट, वही आइडिया अपने काम में भी डाल सकते हो. क्या मामला सही हो, बुरा हो, जो भी हो, यू वुड स्टिल गो टू वर्क, यू स्टिल गोना मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. तो आई थिंक वो कॉन्सेप्ट जो है ना, इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस. इट कुड बी योर वर्कआउट, इट कुड बी ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट जो लाइफ में जिस पे आप कमिटमेंट देते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है आपके बाकी कामों में भी, रिलेशनशिप में भी, फैमिली टर्म्स में भी. एंड आई थिंक एवरीवन शुड एक्चुअली वर्क आउट, क्योंकि ये रूटीन है जिसमें यू नॉट ओनली बिल्डिंग दैट सेंस ऑफ कमिटमेंट बट ऑल्सो जो है ना आपका एक रूटीन भी बन रहा है, आपका फिजिकल हेल्थ भी बन रहा है. एंड एक चीज़ जो मैं यहाँ पे नौजवानों में अक्सर देखता हूँ, जो यूथ जो अभी जिम जा रही है, उनका असल फोकस ये होता है कि कट्स, लुक्स, कांच में जाए, फ्लेक्स करो, लड़कियाँ देखें, विच इज़ नॉट बैड. आई मीन इफ़ यू गोइंग फॉर द रिजल्ट, उसका जो जर्नी है उसमें यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ fair points as well. I mean, you're more healthy, you're more lean, you're better in physical fitness as well. मगर concept is not right. क्योंकि eventually when you get married, तो लोग भूल जाते हैं, बोलते अब तो ज़रूरत नहीं, अब शादी हो गई. तो I've seen people who slimmed down, who were very fit, शादी के बाद they've lost it. तो जो idea of mental health being associated with physical health, I think उस perspective को अगर लिया जाए तो people could actually stay more committed for longer term. So I think we are a bit short on time as well. I've borrowed a lot of you. You're a busy person. I would like to bring in Shanur. He has a few questions, and we'll come to a conclusion with Mr. Shanur. Right. Thank you so much, Thank Hisham. Assalamualaikum everyone. I'm the second host for Dialogue Dive. As Mr. Hisham introduced me, my name is Jam Shanur. I'm the CEO of TechWest Solutions, and we are here with Mr. Emir Azam. And Emir Azam, how are you? How's everything I'm well, going? thank you very much. I hope you loved being here. I guess this is the first time you're doing a podcast. And initially, you know, what happens is that usually people watch the mainstream media, but now everyone is following the footpath of, you know, going and watching the podcast, because we most likely have unfiltered, you know, statements and unfiltered interviews with a lot of entrepreneurs and politicians out here in the city and in the country. So, Mr. Azam, we would like to ask you a few questions. We you know, we'll be very fast about it. So, basically, TriFit, it's a made in Pakistan brand. So, would you consider the fact of taking this across the borders? Yeah, we certainly do. Or I believe in you know, 7 Habits of Highly Effective People, a किताब है Stephen Covey की. उसमें one of the habits is begin with the end in mind. हमारे ऑफिस में एक स्टिकर भी लगा हुआ है, उसको बोलते हैं begin with the end in mind. So end has to be very clear. So one of the end part is that we want to be one of the first global brands which started from Pakistan, because fitness is a universal product, right? तो हमने डिज़ाइन भी ऐसे ही किया है कि हम इस प्रोडक्ट को इंशाल्लाह in the next couple of years as we go pan Pakistan, we'll also take it outside of Pakistan. तो plans और dreams बड़े हैं इंशाल्लाह ताला. Working hard towards laying the foundation right now. Absolutely. So that the foundation is strong, so the building will be paidar. Of course, but initially I think if that could happen, if you could, you know, make a TriFit out there, and I would say in the Arabian Peninsula, like Saudi Arabia में बहुत opportunity अभी हो रही हैं. So a lot of people from the city side, from Pakistan, can actually transfer their membership into those countries, you know. So that could also be a benefit to the country's economy as well as to the clients. So I think if tomorrow, if you get the opportunity as serving as the financial or as a health minister of the state of Pakistan, so which one would you consider, and if you could, so which portfolio would you choose, and if you could choose that portfolio, so उसमें आप propositions क्या लाएंगे, because 65% of the country's youth, you know, it exists in this country, तो उनके लिए opportunity के gateways किस तरीके से खोल सकते हैं. People like you who have so much potential, I mean, like
I think this country is blessed to have you, and there's a lot of thank you so kind good of you to say that, but anyway, यार ये बड़ा loaded question है और इसका सबसे पहले जवाब ये है जिसका काम उसको साजे, ठीक है? So I have absolutely zero aspirations to be the finance minister or the health minister. However, I can certainly provide input and advice to the honorable ministers. देखिए अगर चूँकि I did study economics and I am a chartered accountant and I've spent a huge part of my life in finance, तो पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाने के लिए अगर मैं कोई 2 cents की एडवाइस दे सकूँ तो यकीनन I would love to do that. Similarly, from health perspective also, I could add few things. I do sit on the board of the largest trade forum of the $200 billion fitness and health and fitness industries called Health and Fitness Association, HFA. तो obviously for whatever it's worth कुछ perspective तो है जो पाकिस्तान में अप्लाई भी हो सकता है, फिर हम पाकिस्तान में सबसे बड़ी चेन ही बना रहे हैं, तो कुछ तो perspective है. लेकिन देखिए फाइनेंस के लिए तो अब अगर आप फाइनेंस की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त फौरी तौर पे आज की तारीख में as a businessman, as somebody who's probably added a couple of $1 billion to the global GDP, from the time I spent abroad, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस वक्त हमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं करने के लिए पाकिस्तान में. नंबर 1, हमें इस वक्त आज के लिए जो फॉर्मूला है, सोल्यूशन है. 1947 में जो गेट आउट ऑफ जेल कार्ड था वो अलग था. 1960s में गेट आउट ऑफ जेल कार्ड कुछ और था, 70s में कुछ और था, 80s में कुछ और था. आज 2024 का जो आपका गेट आउट ऑफ जेल कार्ड है वो है कि आपको बड़ी मैसिव प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी पाकिस्तान में. आपको अपने सिक एसेट्स को सेल करना पड़ेगा और उससे होगा ये कि 2 चीज़ें होंगी. एक तो ये कि आपके ऊपर जो नेशनल जो सर्कुलर डेट है मैसिव किस्म का जो बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपको ये सिक नेशनल इंडस्ट्रीज़ को सर्विस करना पड़ रहा है, चाहे वो PIA हो या स्टील मिल हो और इस तरह की मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वो सबसे पहले तो आपको उसको एड्रेस करना पड़ेगा. वो सिक इंडस्ट्रीज़ को जो नेशनलाइज इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा. ये तो सिक एसेट्स हैं. इसी तरीके से आपको अपने कुछ गोल्डन गूसेस. So basically you agree with the fact that we should privatize PIA, and it is getting privatized, and most likely I think its shares are going to be bought by some international firm or some corporate. इसमें ये डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है काफ़ी, और इससे लोकल बिजनेसमैन जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो लोकली जो है इन्वेस्ट कर सकें और वो शेयर्स खरीद सकें. तो ये प्राइवेटाइजेशन की जो अपॉर्चुनिटी है ये पाकिस्तान में रादर देन गोइंग अक्रॉस द बॉर्डर, बिकॉज सिंस लॉन्ग फ्रेम ऑफ टाइम ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ बाहर को ही मिल रही है, पाकिस्तान की विद इन द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिल रही है. देखिए ये तो मैंने नहीं बोला कि प्राइवेटाइज करने के लिए आपको अमेरिका से शेयर होल्डर लाना चाहिए, राइट? तो जो पैसे ज़्यादा दे और जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है उसको आप उसको बेचेंगे आप, राइट? ऑब्वियसली अगर कोई तो HBL किसी ने ख़रीदा, MCB किसी ने ख़रीदा, ऑब्वियसली मुझे पता है जिसने जो ख़रीदा. मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिसने जो ख़रीदा विदाउट नेमिंग नेम्स, उनमें से कुछ लोग फॉरेन थे, कुछ लोग लोकल भी थे, राइट? कुछ लोग फॉरेन थे बट पाकिस्तानी थे जिन्होंने ख़रीदा. तो ABL है भी हमारे जो पॉइंट. I've got nothing to gain. You asked me a question कि जी what would you do? Your perspective. मैं तो नहीं खरीद रहा PIA. मैं तो स्टील मिल नहीं खरीद रहा. I am focused on doing what I'm doing, as I said. But today's get out. You asked me what is today's get out of jail card. The today's get out of jail card is, it's not the perfect answer. But हमने अपने आप को उस पॉइंट पे खड़ा कर दिया है कि अब ये आज का गेट आउट जेल कार्ड ही है, ठीक है जी. बहुत तकलीफ दे है और 2026 का जो गेट आउट जेल कार्ड होगा वो इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे होगा. वो दिन ना आ जाए कि हमें अपने आप को बेचना पड़ जाए. बिल्कुल नहीं. आई होप उस दिन से पहले हम अपने घर की उस दिन से पहले अपनी आज हमें घर की चीज़ें बेचनी पड़ी. कितनी तकलीफ दे बात है ना सर. अगर किसी को अपने घर की चीज़ें बेचनी पड़ती हैं घर चलाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए, राइट, तो बड़ी तकलीफ दे चीज़ होती है. बट आई थिंक इफ यू ट्राइंग टू अचीव सक्सेस इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो उसकी लॉन्ग फ्रेम ऑफ टाइम इफेक्ट्स उसके यही आते हैं कि इवेंचुअली यू विल हैव टू सेल ऑफ योर कंट्रीज एसेट्स. तो इनिशियली तो अगर हम 65 ऑनवर्ड्स अच्छा कर रहे थे, 70s तक आके फिर पाकिस्तान आई गेस डाउन द ड्रेन चला गया बेसिकली. तो आज उसके जो आफ्टर इफेक्ट देख रहे हैं वो किसी की 3 साल की 4 साल की हुकूमत का नहीं है. बट आई थिंक इट इज हैपेंड लाइक सिंस लाइक लॉट ऑफ डिकेड्स, एंड उसके अब इफेक्टिवनेस जो है वो अब हमारे पास शोकेस कर रही है. एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग इनटू डीप डिप्रेशन नाउ. एंड क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होती है ऑब्वियसली इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से, या तो लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के बाहर चले जाते हैं अगर दे हैव गॉट द पोटेंशियल, अगर मेरिट पे अगर हो जाता है तो.
بٹ یہاں پر ڈو یو تھنک کہ یہاں پر مینٹل فٹنس چینج بھی ہونی چاہیے, کیونکہ آئی وڈ سے کہ فزیکل جو ہیں وہ تو بہت ساری ہیں یہاں پر پاکستان میں, بٹ جو مینٹل فٹنس چینج ہیں آئی گیس ان کو بھی یہاں پر ہونا چاہیے, بیکاز کیونکہ آپ کی مینٹل انسٹیبلٹی اگر ہوگی تو آپ فزیکل کتنے بھی آپ اسٹیبل ہوں گے تو آئی تھنک یو وونٹ بی ایبل ٹو کوپ اپ ود یور ایوری ڈے لائف. سو پرائیویٹائزیشن کیوں شانور, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اکانومی کا پہیہ چلانا ہے, ٹھیک ہے, اور اکانومی کا پہیہ چلانے کے لیے اس وقت آپ کا گیٹ آؤٹ آف جیل کارڈ ہے. اس دوسرا جو ایسپیکٹ ہمیں کور کرنا ہے وہ ہے یوتھ امپاورمنٹ پہ, ٹھیک ہے. دیکھیے آپ ہم اس وقت بہت برے حالات میں آ گئے, جیسے میں پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ہماری یوتھ کی پوزیشن یہ ہے کہ ویو ایکچولی اٹس ناٹ این ایسٹ, اٹس ایکچولی اے ایٹم بام that we are ready to explode on ourselves. مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو اوریجنل ایٹم بام ہے جس دن ہم چلانے جائیں گے تو جا کر خدا نہ کرے بٹن دبانے گئے تو کہہ لیں یہ تو بٹن ہی نہیں چل رہا, اس کی بیٹری ختم ہے, بیٹری ڈالو, تار تو وہ 1999 والا تار ہے سر, وہ ریپلیس نہیں ہوا. لیکن جو ایٹم بام انیویٹیبل ہے ایکسپلوڈ ہونے کے لیے وہ ہے آپ کی یوتھ, بیکاز یہ ہم ایک دوسرے کو جو 65% آپ کی یوتھ ہے جس کے پاس کوئی اسکل سیٹ نہیں ہے, میجورٹی آف اٹ جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے, کمپلیٹلی فرام ورلڈ پرسپیکٹیو ایک کمپلیٹلی نان ریلیونٹ بریڈ آف ہیومن بینگز ہیں, تو یہ ڈی ہیومنائز ہو جائیں گے. اور اگر یہ ڈی ہیومنائز ہو گئے تو پھر یہ ہم ایک دوسرے کو کھا جائیں گے کچا, رائٹ. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں آن اے SOS بیسس, سپر ارجنسی بیسس ہمیں اس یوتھ کو امپاور کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کو, جیسے آپ ٹیکنالوجی کمپنی رن کر رہے ہیں, ہمیں وہ اسکلز آئیڈینٹیفائی کرنی پڑیں گی جو اس وقت فوری طور پہ ورلڈ میں اس کی یوٹیلائزیشن ہے. میں آپ کو اگزامپل دوں کہ 1999 میں, آپ اس وقت مجھے نہیں پتا کہ آپ اس وقت کتنے بڑے تھے, آپ چھوٹے تھے, پیدا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے, بٹ 1999 میں جو ہے وہ ڈاٹ کام کہہ رہا ہوں, وہ Y2K کا ایک بہت بڑا سا ایک فنومینن آیا تھا. اس وقت انڈیا نے کیا کیا کہ انہوں نے بہت سارے لاکھوں لوگوں کو 4-6 مہینے کے کورسز کرائے, اور ساری دنیا, اس زمانے میں تو آپ آن لائن ورک نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے شپ کیے, اور UK میں, یورپ میں, امریکہ میں, ساری مڈل ایسٹ, ساری دنیا میں انڈیا نے لوگوں کو شپ کیا. پاکستان واز ویری ویری لیٹ ٹو دا پارٹی, میرے خیال سے وی ڈڈ ناٹ ایون ہیو 0.01% آف دا پائی. انڈیا ہیڈ دا میکسیمم, چائنا واز آلسو دیر. انہوں نے وہاں ان لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کورس کرا کے بھیجا, اور وہ وہاں پہ انہوں نے کام شروع کر دیے. انہوں نے اس اپرچونیٹی کو ہارنس کیا. اس وقت ہمارے پاس ایک یوتھ ہے جو بہت بڑی یوتھ ہے, جو بہت سستی یوتھ ہے. ہم ان کو ریلیونٹ کورسز پہ ٹرین کر کے ہم دنیا میں اپنے آپ کو بیچ سکتے ہیں, اپنے آورس کو بیچ سکتے ہیں, اور یہاں سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. جو آپ لوگ IT لیول پہ جو ابھی آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں ایک ملٹیپل اسکل سیٹس ڈیولپ ہو سکتے ہیں. ہم فٹنس انڈسٹری میں ہم نے پاکستان کی سب سے پہلی انٹرنیشنلی ایکریڈیٹڈ فٹنس اکیڈمی بنائی ہے, جس میں جو فٹنس ڈپلوما ہولڈر 3 مہینے کی ڈپلوما کے بعد, آئی ایم جسٹ گیونگ ایز این ایگزامپل, 3 مہینے اسپورٹا فٹنس اکیڈمی سے 3 مہینے کے ڈپلوما کے بعد you get IC rep certified which is globally recognized. Can you imagine a metric inter BCom کے لڑکا لڑکی آج اس کی کیا پاکستان میں فیوچر ہے؟ یعنی کہ میرے ڈرائیور کی تنخواہ 50,000 روپے, تو پتہ نہیں وہ بھی 40-25,000, کیا زیرو فیوچر, رائٹ. یہ وہ بچے انٹر BCom کے میٹرک کے 3 مہینے کا کورس کر کے their starting salary in our company 70,000 rupees. اسٹارٹنگ وی ہیو لاٹ آف بوائز اینڈ گرلز جنہوں نے ہماری اکیڈمی سے 1 سال پہلے گریجویٹ کیا ہے, آج وہ 2.5 لاکھ روپے کما رہے ہیں, رائٹ. اور اگر وہ باہر جاتے ہیں, دبئی جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, ان کی امریکہ دبئی جا رہے ہیں, کیونکہ وہ دیٹ از مور ریلیونٹ فار اس, دبئی سعودی عربیہ, $1,000 سے $1,500 اسٹارٹنگ سیلری, 2-3 سال کے ایکسپیرینس کے بعد $3,000-4,000. سو ہیئر از این اپرچونیٹی ہاؤ یو کین بریک اوے. ہمیں اس وقت ان اپرچونیٹیز کو ہارنس کرنا ہے. تو یہ تو بات ہو گئی فرام فائنانس پرسپیکٹو. ویری کوئکلی فرام دا ہیلتھ پرسپیکٹو, دیکھیے سر, ہم اس وقت ڈائبیٹک دنیا کے ہائیسٹ انڈیکس پہ آ گئے ڈائبٹیز کے. ہر ڈیزیز آپ کی اس وقت جو آپ کی جو ایوریج ایج ہے وہ 55 سال ہو گئی ملک کی, ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ کوئی ڈاکٹرز آپ کو ایڈوائز کریں گے, ڈاکٹرز بھی کیسے ہیلتھ پہ ایڈوائز کر سکتے ہیں جب کہ انہوں نے خود, میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں nothing wrong, lot of respect for doctors, thank God for the doctors, right. لیکن ہم ہاسپٹلائزیشن میں کمپلیٹ میسیولی انڈر پینیٹریٹڈ, رائٹ, میسیولی انڈر پینیٹریٹڈ. اور جو میڈیکل جو اس وقت آپ کی جو جس کو آپ ہیلتھ انڈسٹری بولتے ہیں وہ ایکچولی ہیلتھ انڈسٹری نہیں ہے, وہ ہے سکنس انڈسٹری.
आप सिकनेस को एड्रेस करें। Absolutely. हेल्थ के लिए तो प्रिवेंटिव हेल्थ में जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहे आप फिजिकल फिटनेस करें, चाहे आप जिम में करें, चाहे आप जाके सड़क पे करें, पार्क में करें, अपने घर में करें, बट you'll have to be physically, you'll have to endure yourself through physical fitness ताकि आप मेंटल वेलबींग की तरफ जा सकें। तो आप इस कहीं आसान है अस्पताल खोलने से कि आप यहाँ पर सोसाइटी को स्कूल्स के थ्रू, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, दफ्तरों के थ्रू और इंडस्ट्री को एम्पावर करें। हाई लोवेस्ट पेनिट्रेशन ऑफ फिटनेस इन दिस 25 करोड़ की आवाम। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, क्योंकि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई कि पाकिस्तान जो है वो तकरीबन जो इम्पोर्ट करता है अपनी मेडिकेशन, फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल जो भी आता है हमारे पास, तो वो सारा इंडिया से आता है, चाइना से आता है और जर्मनी से आता है मोस्ट लाइकली। सो उसका बजट ऑब्वियसली फिर वही बात है कि इट बिकम्स एन एक्सचेकर ऑन द बर्डन एंड ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, क्योंकि इकोनॉमी में वैसे ही फॉरेन रिजर्व्स आपके वैसे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं आपके ऑलरेडी। फिटनेस चेंज अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें, टेकिंग योर योर स्टांस ऑन दिस, उसके बाद ये होगा ऑटोमेटिकली हमारा जो डेब्ट बर्ड है हमारे पे, तो वो भी हमारे पे कम हो जाएगा एक तरीके से, बिकॉज क्योंकि इंपोर्ट करते हैं तो दैट इज़ अ नुकसान टू द कंट्री, बेसिकली इट्स लाइक नेगेटिव। इस पे ये फिटनेस चेंज जितनी खुलेंगी, वेलबींग जितना होगा लोगों का, तो जस्ट यूजुअली पीपल ऑब्वियसली डोंट इंटेंड टू अफोर्ड द ऑब्वियसली द जिम्स आउट हियर इन पाकिस्तान, बट मोस्ट लाइकली मोस्ट प्रेफरेबल तो मेरे पर्सपेक्टिव से यही होगा, क्योंकि आई थिंक ट्राइफेड इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब एज एन, क्योंकि लोगों के दिमाग में तभी भी यही इमेज होती है कि ट्राइफेड इज़ वन ऑफ द बेस्ट जिम्स बट दे आर ऑल्सो एक्सपेंसिव, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे ये बात की। तो मेरा नहीं, उनके पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, आप जाके गो थ्रू द वेबसाइट एंड एवरीथिंग, बट लोग डरते भी हैं, खोलेंगे भी, फिर उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल को हिट होगा, ये हो ना, इस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं। बट आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव अ मैसेज टू द होल यूथ एंड यू शुड ऑल्सो एक्सपोज द ट्राइफेड एज एन कि उनकी प्राइसेस जो हैं वो प्रीमियम सर्विसेज दे रहे हैं विद लो कॉस्ट प्राइसेस। तो हाउ डू यू इवन मैनेज विद दैट? एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो टेल द पीपल, और इस पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा फॉरवर्डिंग करें आप कि लोग ज़्यादा कैपेसिटी में आएँ इस पर। शानूर, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। देखिए, हम बड़ा सिंपल है यार, हमारा तो एक टैग लाइन है, ट्राइफेड वेयर लग्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर कोई इंसान एक कप चाय की प्राइस अपनी फिटनेस से ज़्यादा वैल्यू करता है तो उसके लिए ट्राइफेड नहीं, बिकॉज ट्राइफेड मेंबरशिप कम्स डाउन टू ए प्राइस ऑफ कप ऑफ कॉफ़ी पर डे, राइट? तो अगर मुझे मेरी लाइफ में चाय की कप जो है उसकी ज़्यादा वैल्यू है बनिस्बत मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल के, तो फिर मुझे चाय पीनी चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में तो हमने उसको, अब आप अगला सवाल फिर आप कहते हैं कि जी आपने इतना सस्ता रखा है तो आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, हर इंडस्ट्री का एक मेट्रिक होता है। ये जो इंडस्ट्री है, फिटनेस इंडस्ट्री है, इसका मेट्रिक ये बहुत हाई प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री नहीं है। इसमें मार्जिन इज टीन्स में है मार्जिन, 12, 14, 15%। दैट्स वाई वी आर एबल टू ऑफर ट्राइफेड एट दिस अफोर्डेबल प्राइस, बिकॉज हम तो इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे होते हैं ना। हमें फ़ायदा ये हुआ आज, मतलब ट्राइफेड को जो बहुत अमेजिंग ग्रोथ मिल गई, उसकी वजह ये है कि हमारे आने से पहले, और ज़रा तवज्जो चाहूँगा आपकी शानूर, हमारे आने से पहले फिटनेस की ऑल्टो पाकिस्तान में जो है वो करोला की प्राइस में बिक रही थी। तो हमने जब ऑडी लॉन्च कर दी, राइट, एट द प्राइस ऑफ ऑडी, या करोला लॉन्च कर दी एट द प्राइस ऑफ करोला, तो हमें ऑलरेडी एडेड एडवांटेज मिल गई, क्योंकि लोग तो ऑलरेडी ऑल्टो में बैठ रहे थे और पैसे दे रहे थे करोला के, ठीक है ना, फिटनेस के पर्सपेक्टिव से। बिकॉज अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा मज़ाहिर में ये भी कह सकता हूँ कि हमें मुर्गी खाने का शौक़ नहीं, हमें अंडा खाने का शौक़ है। हम अंडे खाते हैं, तो प्रोटीन भी होती है वो तो यहाँ पर पाकिस्तान में चूँकि ज़्यादातर लोगों को मुर्गी खाने का शौक़ है, तो हमें इसलिए भी एडेड एडवांटेज मिल जाती है कि हमारी प्राइसिंग जो है वो अंडे के लिहाज से बनाई गई है। हमारी खुराक अंडे हैं, हमारी खुराक मुर्गी नहीं है। मुर्गी इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अंडे, राइट? अच्छा, आखिरी बात जो है वो ये है कि देखें, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारा मिशन जो है ना, वो ट्राइफेड का मिशन टू स्टीयर सोसाइटी टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एनकरेज पीपल टू एक्सरसाइज रेगुलरली एंड मेक हेल्थी चॉइसेस। जब ये मिशन है आपका, राइट, टू स्टीयर सोसाइटी, तो उसके अंदर वी नॉट रियली फोकसिंग अ होल लॉट ऑन ट्राइफेड। वी वांट टू ग्रो द इंडस्ट्री, वी वांट। अब देखिए, मिसाल के तौर पे आप रेस्टोरेंट खाना जाते हैं, 13% सेल्स टैक्स है। आप अगर अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं तो उस पर सेल्स टैक्स नहीं, लेकिन अगर आप जिम में आते हैं तो 13% सेल्स टैक्स है। तो सिकनेस इंडस्ट्री पे सेल्स टैक्स नहीं है। मैं ट्रेडमिल इंपोर्ट करता हूँ टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फॉलिंग सिक, राइट? तो मैं उस पर 60% ड्यूटी देता हूँ, 70% ड्यूटी देता हूँ।
राइट. लेकिन अगर वही हस्पताल अगर ट्रेडमिल इंपोर्ट करता है तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं. I think that's a global issue. It's not. Okay. No, it's not. Because in the United States, we just passed the bill, right? Okay. Recently. जी, we just passed the bill कि वहाँ पर आप अब सेल्स टैक्स जिम्स में नहीं. यूरोप में तो बहुत से मुल्कों में बहुत पहले हो चुका है, राइट. तो आप किस सिस्टम को इनकरेज करें. अगर आप जहाँ पर आपका फोकस होगा वही ग्रो करेंगे. अगर आप सिकनेस और सिकनेस इंडस्ट्री को एड्रेस नहीं कर पाएंगे आप ऑलरेडी बॉम्ब एक्सप्लोड हो चुका है, राइट. मैंने बताया ना आपको एटम बॉम्ब वाली बात. तो इस वक्त कहीं बेहतर है कि आप वेलनेस इंडस्ट्री को प्रमोट करें ताकि लोग अपना खुद ही ख्याल कर लें, खुद ही बीमार ना पड़े. क्योंकि आपका अस्पताल तो है नहीं आपके पास, लोगों को एड्रेस करने के लिए. तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उनको इनकरेज करें. आपने 13% टैक्स लगाया हुआ है, आप मशीनों पे ड्यूटी लगाई हुई है आपने. जो लोग यहाँ मशीनें बना रहे हैं तो उनको अगर कोई कंपोनेंट्स चाहिए कुछ उस बनाने के लिए उनको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आ रहे हैं उसके लिए उस पर भी आपने फुल ड्यूटी लगाई हुई. तो आप कैसे इनकरेज करेंगे, ठीक है. तो इट्स अ वास्ट डिफरेंस, राइट. रेस्टोरेंट पे लगाएं आप अच्छी नहीं, मैं तो कहता हूँ 50% लगा दें आप ताकि कम से कम लोग हेल्दी तो खाना खाएं, बाहर ना जाएं, घर पे खाएंगे फिर, राइट. और सिगरेट पे ड्यूटी और बढ़ाएं आप, और बढ़ाएं, ट्रिपल क्वाड्रुपल कर दें. सोडा कोक पेप्सी पे ड्यूटी लगाएं. सऊदी अरेबिया में मेरे सामने एक कोक के कैन पे 400% प्राइस बढ़ गई, राइट. उसकी वजह क्या है कि उन्होंने कहा यार हमने सोसाइटी को हेल्दी तरफ लेके आना है. सिगरेट बेइंतहा एक्सपेंसिव कर दी. हम उन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाते, हम अच्छी चीज़ों पर टैक्स लगाते रहते हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी बेहतर होगी. तो ये चीज़ें माइंड सेट की, पैसा कमा सकता है इंसान, आपको टैक्स डॉलर फिर भी मिलेगा. तो कहीं ना कहीं आपका भी सारा पैसा जो है वो अनहेल्दी सोसाइटी को, बीमार सिकनेस इंडस्ट्री को ट्रीट करने में लग रहा है. So Mr. Amir Azam, so we'll finalize this whole conversation and everything. It was lovely having you over here. So I think now let's finalize and we'll definitely want to dive into to the final call. So what would your message be for the youth out here in this city and in this country? यार देखिए यूथ को तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यार आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, राइट. मैं सारी दुनिया घूम के आया हूँ और आप में से बहुत लोग घूमने भी जाएंगे और घूमेंगे भी. यार हमारा मुल्क अभी भी, मैं और आई से दैट विद लॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे मुल्क में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अगर हम आज फैसला कर लें एज ऑन इंडिविजुअल, नॉट बिकॉज कि मैं सही काम जब करूँगा जब सारे लोग सही करेंगे. मैं कचरा सड़क पे फेंकना उस दिन बंद करूँगा जब सारे लोग कचरा, मैं टैक्स उस दिन दूंगा जब सारे लोग टैक्स देना शुरू करेंगे. मैं झूठ उस दिन बोलना बंद करूँगा जब पूरा मुल्क झूठ बोलना बंद कर देगा. नहीं, आप अपने घर से स्टार्ट करें, बिकॉज जो पहले स्टार्ट करेगा उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज है. ठीक है जी. उसको ये मैं आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है. जो इंसान आज सही फैसले कर लेगा, वो एक बड़ी मज़े की सेइंग थी, मैं बड़े जल्दी से बोल देता हूँ इसको, कि एक जर्मन यहाँ पे आया तो वो कहने लगे, उसने कहा यार मैंने सुना आपके यहाँ वो बड़ा अच्छे गोलगप्पे मिलते. कहा नहीं आप नहीं खा सकते गोलगप्पे बिकॉज उसमें बड़ी मिलावट है. उसने कहा यार मुझे वो फला चीज़ खानी है. उन्होंने कहा जी नहीं आप नहीं खा सकते, यहाँ बड़ी मिलावट है. तो वो जर्मन बेचारा टूरिस्ट आया था, 4-5 जब उसने सुना तो उसने कहा कि यार आई वांट टू, आई मीन मे बी इट्स अ जोक बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैसेज हियर. उसने बोला यार आई वांट टू लिव इन दिस कंट्री नाउ. वो अपना पासपोर्ट वगैरह फाड़ दिया उसने कहा जी मुझे पाकिस्तान में रहना. कहा यार पागल आप क्यों. कहते हैं यार ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ आप लोग तो कोई काम सही नहीं कर रहे. मैं खाली गोलगप्पे अगर मिलावट के बगैर बेचना शुरू कर दूँ तो लाइन लग जाएगी यहाँ पे. मैं अगर यहाँ पर मिठाई मिलावट के बगैर बेचना शुरू कर दूँ तो लाइन लग जाएगी मेरे पास. तो ईमानदारी से काम करने में, वर्क एथिक के साथ काम करने में, एथिक्स के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करने में बहुत फ़ायदा है. क्योंकि कोई कर नहीं रहा. बाहर आप करने जाएंगे ऑनेस्टी के साथ काम करने में तो आपके पास तो सारा कंपटीशन है, बिकॉज पूरा मुल्क सच्चा है. यहाँ पर तो अकेले आप सच्चे होंगे तो हर आदमी आपके साथ काम करना चाहेगा. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट क्यों थी उस वक्त? बिकॉज पूरा अरब पेनिनसुला उस वक्त झूठा था, सारे कुरैश झूठे थे. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत इसलिए थी बिकॉज वो सादिक और अमीन थे. तो आज तो मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. सही काम करो तो कमाई, तरक्की, हर चीज़ है. बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू. चैरिटी बिगिंस एट होम. आज फैसला कर लें. आज वो जो मेहनत आपको सुबह 6 बजे उठ के बाहर के मुल्क में जाके मीडियोकर लाइफ गुजारने के लिए सुबह 6 बजे निकलना पड़ेगा घर से, रात को 9 बजे वापस आना पड़ेगा. अपने मुल्क में अगर आप 6 to 9 मेहनत से काम करें, वक्त पे सो जाएं, वक्त पे उठ जाएं, हेल्दी ईटिंग कर लें, थोड़ा बहुत अपनी सेहत का ख्याल कर लें, वर्जिश कर लें, हेल्दी लाइफस्टाइल करें, वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर. बिकॉज यहाँ कोई कर नहीं रहा है. गोल्डन अपॉर्चुनिटी. और प्लीज़ कंट्रोल व्हाट्स गोइंग इन योर हेड.
You have access to all the information through your phone. Please access the right. Don't watch the wrong TikTok. Watch the right TikTok, right? Watch the. हमारी वो HR की जो head है people and culture की बड़ी खूबसूरत बात कहती है वो बोलती है यार choose your heart. You have to go through the heart, but choose your heart, right? Emotions. Choose your heart. Choose your heart. The heart here in this country is a lot better than the hard that you'll have to face when you go abroad, because वो जो hard है उसके बाद आपको mediocre life मिलने वाली है, but वही hard अगर आप यहाँ adopt कर लेंगे तो आप किसी कंपनी के CEO बन जाएंगे, बहुत बड़े बड़े ventures कर लेंगे आप. Thank you so much, Mr. Amar Azam. It was very lovely having you here, and I think this is the first podcast, and think inshallah for the upcoming podcast, I think you are going to be like amongst the the foundations of the podcast. Actually, you're initially the first person who has come in here. But thank you so much for being here, and everyone, thank you so much for watching the podcast, and inshallah very soon we will come up with something new as well. Thank you.